Title of the webinar is Indirect Assessment for Outcome-Based Education System. ठीक है, I start with my introduction. I hope कि वो थोड़ा सा हो चुका होगा. Otherwise, brief introduction. From my side is my name is Dr. Mohammad Faisal Khan. I'm serving at Hamdard University, Karachi currently as associate professor. I'm also serving as advisor to FEST OB coordinator for the university. And my administrative designation is program coordinator, which is equivalent to head of the Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering Science and Technology, Hamdard University, Karachi. As far as my education is concerned, I graduated from NED University, Karachi in 2003 as an electrical engineering graduate. After that, I served at a contractor which was working for White Oil Pipeline project, the largest project of the country at that time. And the main stakeholders were Caltex, Shell, Parco, etc. I served there for about 1 year, and then I joined a public sector organization named as Islamabad Electric Supply Company, which works under the umbrella of WAPDA. After serving there again for about 1 year, I resigned from that job and secured admission at Ghulam Sahani Institute in Science and Technology on HEC scholarship for MS leading to a PhD program. I completed my master's in 2006, PhD in 2011. Then I served at GIK Institute for about 4 years as assistant professor. And in mid of 2015, I returned back to Karachi and joined Hamdard University. In Hamdard University, I was assigned the task of to serve as the FEST OB coordinator, which is the responsible person for all the OB matters and designing etc. policies, procedures. I served as FEST OB coordinator for Hamdard University from 2015 to 2019, and from 2019 I'm serving as advisor to the FEST OB coordinator, and there's another faculty member who is serving there as FEST OB coordinator. As well as I am also a member of program evaluation panel for Pakistan Engineering Council, etc. I delivered and conducted a number of trainings. I have also received a number of training regarding subject topic. And let's switch back to our main topic. The topic is indirect assessment for outcome-based education system. The learning outcomes. Hopefully, will try my level best that at the completion of this session, the participants or attendees will be able to understand the concept of indirect assessment. The participants or attendees will be able to design relevant assessment tools with realistic KPIs, implement indirect assessment in their organizations existing system. This is a major important part कि basically अगर आप indirect assessment जो है वो डिज़ाइन कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन आप उसको एग्जिस्टिंग सिस्टम में किस तरह लेकर आएंगे. याद रखिए कि इस जैसी काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ में हो रही होती हैं रिलेटेड टू क्वालिटी, रिलेटेड टू वेरियस मैटर्स ऑफ या वेरियस वेज ऑफ असेसमेंट. बस आपको अपनी नई चीज़ जो है उसी के अंदर फिट इन करनी होती है, और आपको अंदाज़ा होता है कि जो नई चीज़ है that is somehow already under practice in your university or organization. So these are the learning outcomes. Right. Now our traditional education system. In our traditional education system, what happens is that we have good students. Okay. हमारे एक अच्छे students होते हैं. We got adequate resources. हम उन्हें पढ़ाते हैं, treat करते हैं, train करते हैं, and then they become good graduates. So in other words, if I can say that we are taking the students as an input, we are teaching them, assessing them, grading them to a set of curriculum which has already been defined, and then they are passing out as a fresh graduates. All the resources, financial support, infrastructure, facilities, faculty is contributing in it. This is the traditional education system. Okay, यहाँ पर ही मैं बात दोहरा दूँ, कभी भी इसका मकसद ये नहीं है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम है. ऐसा नहीं है, हर चीज़ में बेहतरी से बेहतरी आती है. सो ओबी जो है, जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन है, वो एक नेक्स्ट स्टेप है इसी सिस्टम का, और ये पिछले सिस्टम को बेहतर कर रहा है. किस तरह कर रहा है वो अभी हम देख लेते हैं. आई एम होपफुल दैट यू हैव
already sufficient knowledge about outcome based education system. अच्छा, आउटकम बेस्ड एजुकेशन को ज़रा गौर करें, टर्म्स पे गौर करें. आउटकम बेस्ड एजुकेशन यानी कि ऐसी तालीम जो आउटपुट पे बेस्ड है कि आप एट द एंड अचीव क्या करें. अच्छा, वो जो अचीवमेंट है वो से बेसिकली दैट इज़ योर स्किल सेट जो आप चाहते हैं कि आपके ग्रेजुएट के अंदर. ठीक है, आप मैनेजमेंट साइंसेस को बिलोंग करते हैं, आप कंप्यूटर साइंस को बिलोंग करते हैं या किसी और डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं, आपके एक सेट ऑफ गोल्स, सेट ऑफ टारगेट्स हैं. ओके जी, अगर मेरा जो स्टूडेंट है जिसको मैं बिजनेस ग्रेजुएट बनाने जा रहा हूँ, इफ़ आई एम द बिजनेस फैकल्टी मेंबर और मेरे डिपार्टमेंट ओबी सिस्टम ऑप्ट करता है, तो बेसिकली टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि हम एक अच्छा बिजनेस ग्रेजुएट बनाएंगे जिसकी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी होंगी, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सीलेंट होंगी, जो एनालिसिस कर सकेगा. ठीक है, उसके अलावा एथिकली ही और शी शुड बी गुड. ठीक है, फिर टेक्निकली ही शुड बी साउंड. इसी तरह अगर हम आ जाएं सॉफ्टवेयर साइड पे, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसमें क्या क्या स्किल सेट या आउटकम्स हम सेट करेंगे, वो क्या होंगे? ही और शी शुड बी गुड इन प्रोग्रामिंग, साउंड नॉलेज, टेक्निकली साउंड, प्रेजेंटेशन स्किल्स, एथिक्स, जो सोल्यूशन वो प्रोवाइड करे वो सोसाइटी के अगेंस्ट ना हो, फीजिबल हो, इन्वायरमेंट तो वो मद्देनजर रखता हो, एक्सेट्रा. सेम अप्लाइज विद इंजीनियरिंग. बाकी इंजीनियरिंग में भी हम इसी तरह आउटकम सेट करते हैं या स्किल सेट एक डिफाइंड होती है कि हमें ये स्किल सेट प्रोड्यूस करनी है. तो बेसिकली अब जो आप ओबी में आप तालीम दे रहे हैं वो सारी लिंक होगी उस स्किल सेट से. आप जो एक कोर्स पढ़ाएंगे, एक लैब करवाएंगे, कोई ट्यूटोरियल करवाएंगे, स्टूडेंट को इंटर्नशिप करवाते हैं या कुछ भी करते हैं, जो भी उसके साथ यूनिवर्सिटी में आप उसकी ट्रेनिंग या ग्रूमिंग के लिए कर रहे हैं, वो किसी ना किसी स्किल से रिलेट करेगा. दैट स्किल इज बेसिकली योर आउटकम. तो अब क्या हो रहा है ओबी में कि आप पूरी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको आप किसी ना किसी स्किल सेट से रिलेट कर रहे हैं. आमतौर पे जो हम अगर बात करें इंजीनियरिंग काउंसिल के तनाजुर में, तो वो तो स्किल्स उन्होंने डिफाइन की हुई हैं, 12 स्किल्स हैं. ठीक है, इसी तरह जो NCEAC है उसका स्किल सेट एक डिफरेंट है, वो भी इसी 12 से मिलता जुलता है, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ग्रेजुएट का जो है वो दोनों का ही काफ़ी हद तक सेम है. सो इफ़ आई डिफाइन आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, आई कैन से दैट आप क्या कर रहे हैं, यू आर ऑफरिंग सम स्किल्स, और फिर जब आप ऑफर करते हैं अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं तो फिर आप उसे असेस करते हैं. असेसमेंट का कोई तरीका हो सकता है, दैट कैन बी डायरेक्ट, दैट कैन बी इनडायरेक्ट, दैट कैन बी फॉर्मेटिव, समेटिव, एक्सेट्रा, जो भी है. ठीक है, उसकी बेसिस पे जो भी आउटपुट आया है, अब आप उसको एवेल्युएट करते हैं उस चीज़ को कि आया. एवेल्युएशन में बेसिकली क्या है कि आपकी जो कोहॉर्ट लेवल पे या पूरी क्लास ने या बच्चे में जो आप स्किल सेट चाह रहे थे वो उसमें प्रोड्यूस या इंड्यूस हुई है या नहीं हुई. आप उस चीज़ को एवेल्युएट करते हैं, whether the skills have been developed or not. अब यहाँ पे जाके एक फीडबैक लूप है. ये फीडबैक लूप हम कहते हैं इसे CQI, कंटिन्यूअल क्वालिटी इंप्रूवमेंट. इसमें ये कि अगर वो स्किल सेट सही डेवलप नहीं हुई तो व्हाट शुड बी अ वे आउट. आपको क्या करना है कि अगली दफ़ा ये गलती ना हो, और ये जो करंट ग्रेजुएट्स हैं ये फिर किसी और जगह पे इसे जाके सीख जाए. तो ये जो फीडबैक लूप है, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ ओबी सिस्टम, कि आप मुसलसल सिस्टम जो है अपने आप को बेहतर करता रहता है. क्यों? आफ्टर द वैल्यूएशन यू आर गेटिंग सम इनपुट, फीडबैक, एनालिसिस का आउटपुट कुछ आ रहा है, उसकी बेसिस पे आप डिसाइड कर रहे हैं कि ओके जी हमने इस तरीके से सिखाया लेकिन ये स्किल इतनी अच्छी तरह इंड्यूस नहीं हो सकी, डेवलप नहीं हो सकी. ओके, वी शुड ट्राई समथिंग न्यू. अब उसका एक प्रोसीजर होता है, उसकी बेसिस पे ये CQI परफॉर्म होता है, और फिर दोबारा आप इसी तरह अगले सेमेस्टर में इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट एंड दिस वाज मिसिंग इन द ट्रेडिशनल सिस्टम. किसी न किसी शक्ल में मौजूद था लेकिन काफ़ी हद तक ये मेजरली मिसिंग एलिमेंट था. ओके, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ओबी सिस्टम? सबसे अच्छी बात यह है कि व्हाट एवर द टारगेट्स आर, दोज आर क्लियर टू द टीचर्स, कोर्स इंस्ट्रक्टर्स, दैट इज फैकल्टी मेंबर्स, एज वेल एज द स्टूडेंट्स. यानी कि पढ़ाने वाले को भी पता है कि अल्टीमेटली बच्चे को क्या फ़ायदा होगा इससे, और स्टूडेंट को भी पता है कि जनाब सर या मैम जो मुझे कोर्स पढ़ा रही हैं उसके अंदर मुझे ये सॉफ्टवेयर सिखा रही हैं, प्रोग्रामिंग सिखा रही हैं या मुझसे प्रेजेंटेशंस ले रही हैं, तो इसका मुझे क्या फ़ायदा और मेरी कौन सी स्किल इससे बेहतर है.
दिस इज द मेजर एडवांटेज। दूसरी चीज, इनकॉर्पोरेशन ऑफ इनपुट फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स। आपके सिस्टम से जो आउटपुट है दैट इज अ ग्रेजुएट, वो अगेन किसी जगह जाके सर्व कर रहा है। तो बेसिकली दे आर फ्यू स्टेक होल्डर्स जो इस पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व। तो अब सिस्टम क्या करता है, हर स्टेक होल्डर की राय लेता है और इसको इनकॉर्पोरेट करता है सिस्टम। मीन्स कि अगर कोई स्टेक होल्डर ही कह देता है कि जनाब बच्चे में ये स्किल इस तरह से बेहतर हो सकती है, इस तरह से बेहतर नहीं हो रही, या जो स्किल द यूनिवर्सिटी इज थिंकिंग वेदर दिस स्किल इज बीइंग डेवलप्ड इन अ वेरी गुड वे, लेकिन जो स्टेक होल्डर है या एम्प्लॉयर है वही कहता है कि ऐसा नहीं है, ट्राई समथिंग न्यू, डिफरेंट वे में डेवलप करें या कुछ नया करें, या फिर ये चीज़ ट्राई करें, या ये मार्केट में एक नया टूल आ गया, आप बच्चों को सुबह के मार्केट की डिमांड आ रही है आगे, एक्सेट्रा। Whatever the input or the comment from the stakeholders are that are being incorporated in OBE system. And the third one is transparency. ट्रांसपेरेंसी का फ़ायदा ये है, मतलब मैं उसको ट्रांसपेरेंसी को इस तरह डिफाइन कर रहा हूँ, नॉट इन द रॉन्ग वे। इसको हम इस तरह डिफाइन कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एक टीचर हैं, उन्होंने कोई प्रोजेक्ट ऑफर किया, प्रोजेक्ट ऑफर करने के साथ ही उन्होंने उसके रुब्रिक्स दे दिए। So he or she will evaluate each and every student on the basis of those rubrics. Rubrics क्या है, वो ब्रेकअप है कि जनाब अगर 10 मार्क्स का या 100 मार्क्स का प्रोजेक्ट है तो उसका ब्रेकअप किस चीज़ के कितने मार्क्स हैं, ठीक है, और वाइवा के कितने मार्क्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के कितने मार्क्स हैं, स्टूडेंट की ड्रेसिंग के कितने मार्क्स हैं, जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उसके एस्थेटिक सेंस के कोई मार्क्स हैं या नहीं, एक्सेट्रा। सो इन दिस वे एक ट्रांसपेरेंसी आ गई। टीचर के लिए ये आसानी है कि उसकी वो इजीली एवेल्युएट कर सकता है, स्टूडेंट के लिए ये आसानी है, उसको पता है कि टीचर ने कहाँ मार्क्स डिडक्ट करने हैं और कहाँ किस बेसिस पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मैं ले सकता हूँ। दीज आर द एडवांटेज। और इसके अलावा और भी एडवांटेज हो सकते हैं, बट दीज आर सम द मेन वंस अकॉर्डिंग टू मी। ओके जी, फ्यू टर्म्स या नॉमेनक्लेचर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। द फर्स्ट वन इज़ विजन। What is the vision? As far as the terminology is concerned, it means to see or imagine. As far as an organization is concerned, your organization's vision is concerned, इसको हम define करेंगे, an aspirational description of what an organization would like to achieve or accomplish in the mid-term or long-term future. आपकी ऑर्गेनाइजेशन मुस्तकबिल करीब में क्या चाहती है, that statement is the vision. इसी से रिलेटेड एक और अगली टर्म है मिशन। सो मिशन मीन्स असाइनमेंट और ऑपरेशन। एज फार एज द डेफिनेशन इज कंसर्न, दिस इज अ स्टेटमेंट और सेंटेंस डिस्क्राइबिंग अ कंपनीज फंक्शन, मार्केट्स एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, अ शॉर्ट रिटन स्टेटमेंट ऑफ योर बिजनेस गोल्स एंड फिलॉसफीज। इन अदर वर्ड्स, विजन को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जिन स्टेप्स पे अमल दरामद करती है, those are named as your mission statements. अच्छा, अगर मैं अपनी बात को दोहरा देता हूँ, विजन को अचीव करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिन स्टेप्स को वो फॉलो करती है या प्रैक्टिस करती है, those are named as mission statements. और मिशन ऑब्वियसली जैसे मैंने डिफाइन किया, मिशन जो है वो विजन के साथ अलाइंड होगा, यानी कि मिशन जो है वो टुवर्ड्स विजन चल रहा होगा। If I see the vision statements of NUCES, vision statement says to produce world-class professionals who are responsible citizens and good human beings. This is a vision statement of the university. अब mission statement को देखें। mission statements 3 हैं: to identify and attract the most promising students from diverse communities, to shape them in visionary leaders and world-class professionals, to impart quality education to students irrespective of their financial background, ethnicity, gender or religion, to create an inclusive society. Third one is to promote research and scholarly activities to generate knowledge. तो बेसिकली अगर आप ये देखें तो यही 3 स्टेटमेंट ये अलाइन है टुवर्ड विजन, और विजन जो है वो इन तीनों चीज़ों को कवर करता है, ठीक है। Whenever an accrediting body sends a visitation team to your program or to your university, वो सबसे पहले आके विजन और मिशन स्टेटमेंट की हमेशा बात करेंगे। दे वांट टू मेक श्योर कि जनाब आपको पता है कि मिशन जो है आपकी यूनिवर्सिटी का या आपके फैकल्टी या डिपार्टमेंट का वो मिशन के साथ विजन के साथ अलाइंड भी है या नहीं।
नॉर्मली अलाइंड ही होता है, जस्ट द विजिटेशन टीम वांट्स टू मेक श्योर कि ये द फैकल्टी मेंबर्स हैव अ गुड आइडिया अबाउट इट और नॉट। अच्छा, अब हम बात करें अलाइनमेंट की। हम बात कर रहे थे कि मिशन स्टेटमेंट जो है वो विजन के साथ अलाइन होता है। तो इस तरह से अलाइनमेंट देखें तो मैं अगर कोर्स से स्टार्ट लूँ, इफ़ यू आर टीचिंग अ कोर्स, तो यू आर सेट सम कोर्स लर्निंग आउटकम्स। आप कुछ स्टेटमेंट सेट करते हैं कि जनाब जब स्टूडेंट आपसे ये कोर्स पढ़ेगा तो उसके बाद वो क्या क्या सीख जाएगा या सीख जाएगी। तो those statements are named as course learning outcomes. टर्म्स गौर कीजिए, टर्म्स पे। कोर्स लर्निंग आउटकम्स, आउटकम्स मीन्स ऑब्जेक्टिव्स, आउटपुट। कोर्स लर्निंग, कोर्स में पढ़ने के बाद वो क्या सीख जाएगा। दीज आर योर कोर्स लर्निंग आउटकम। अच्छा, ये अलाइंड होते हैं प्रोग्राम लर्निंग आउटकम से। प्रोग्राम से मुराद है योर डिग्री प्रोग्राम। आप नेबैक का कोई प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं मैनेजमेंट साइंसेस का या बिजनेस का या एक्सेट्रा, या फिर आप कंप्यूटर साइंस का या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं या इंजीनियरिंग में मैकेनिकल प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, तो वट एवर प्रोग्राम डिग्री प्रोग्राम यू आर ऑफरिंग, उसके कुछ ना कुछ टारगेट्स होंगे, वो दोज आर नेम्ड एज योर प्रोग्राम लर्निंग आउटकम। यानी कि आप ये चाहते हैं कि स्टूडेंट 4 साल आपसे पढ़ने के बाद स्टूडेंट के अंदर जो स्किल सेट जनरेट हो जाए, those will be named as your PLOs or program learning outcomes. गौर कीजिए टर्म्स पे, प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स। प्रोग्राम से बच्चा क्या सीखेगा immediately after completion of the degree. CLOs are aligned with or mapped with PLOs, or PLOs are aligned with program education objectives. प्रोग्राम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली ये डिफाइन करते हैं कि आपके प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, आप PLOs जो है वो टूवर्ड्स POs अलाइंड होते हैं। तो ये अभी आगे चल के हम थोड़ी सी डेफिनेशन भी इसकी देख लेंगे। तो प्रोग्राम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, ये आपके प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि स्टूडेंट जब आपसे पास आउट हो गया, यू हैव प्रोड्यूस अ ग्रेजुएट, वो पास आउट होने के बाद ही और शी वेंट टू द मार्केट और इंडस्ट्री, सर्व देयर फॉर अबाउट फ्यू ईयर्स, और उस वक्त जो उसमें क्वालिटीज़ जनरेट होंगी, दोज आर योर प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, वो जो स्पैन है ग्रेजुएशन के बाद से कब आप पीओ कैलकुलेट करेंगे, पीओ कैलकुलेट करेंगे, वो स्पैन आप अपने सिस्टम में डिफाइन कर दें और उसकी बेसिस पे फिर कैलकुलेशन होती है। अच्छा, जो पीओज हैं वो अलाइंड होते हैं यूनिवर्सिटी के मिशन के साथ। यूनिवर्सिटी का मिशन हमारी थोड़ी देर पहले बात हो चुकी है, और यूनिवर्सिटी का मिशन जो है दैट इज बीइंग अलाइंड विद यूनिवर्सिटीज विजन। तो अल्टीमेटली अगर आप हायरार्ची देखें तो वो इस तरह बनती है कि CLOs जो है, जो भी आप कोर्स पढ़ा रहे हैं वो अल्टीमेटली किसी ना किसी PLO या स्किल सेट के साथ लिंक हो रहा है, और जो भी PLO है वो किसी ना किसी PO के साथ लिंक हो रहा है, और POs जो हैं वो आपने डिफाइन ही ऐसे किए हैं जो यूनिवर्सिटी विजन के साथ अलाइन होते हैं, और यूनिवर्सिटी विजन जो है वो यूनिवर्सिटी विजन के साथ अलाइन होता है। अच्छा, अगर आपके डिपार्टमेंट या फैकल्टी का कोई विजन या मिशन है तो वो ये POs और यूनिवर्सिटी मिशन के दरमियान में आएगा हमारा चीज़। Next, program educational objectives. As far as the definition is concerned, program educational objectives are broad statements that describe what the graduates are expected to achieve after a few years of graduation. It should be ensured that the program mission and objectives are aligned with the vision of the institution. Ultimately, आप जो ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में जाके वो सर्व करता है या करती है, और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद 3 साल 4 साल या 5 साल ये सेट आपका प्रोग्राम, डिग्री प्रोग्राम या आपकी यूनिवर्सिटी करेगी कि इतने साल मार्केट में सर्व करने के बाद उसमें जो क्वालिटीज़ जनरेट होंगी, उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेट होंगी, वो क्या हो कहलाती हैं, दोज आर योर प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो इसी से यह अंदाज़ा होता है कि प्रोग्राम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स का स्टूडेंट से लेना देना नहीं है, एलुमनाई से लेना देना। यानी कि जब तक स्टूडेंट है उस वक्त तक पीयूस उससे की कैलकुलेशन नहीं हो सकती। पीओस की कैलकुलेशन होगी उस वक्त जब स्टूडेंट एलुमनाई में कन्वर्ट कर हो चुका होगा या अपग्रेड हो चुका होगा और 3 से 5 साल सर्व कर चुका होगा। एज एन एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 प्रोग्राम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स शेयर कर रहा हूँ। हमदर्द यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोग्राम के 3 प्रोग्राम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं। The university has defined that electronics engineering program graduate should have the following skills after getting 5 years of professional experience. यानी कि ग्रेजुएट प्रोड्यूस हुआ, 5 साल जाके मार्केट में सर्व किया, 5 साल के बाद उसमें ये 3 खसूसियात होनी चाहिए। हम उसे PEO 1, PEO 2, PEO 3 कहते हैं।
ठीक है, नॉमेनक्लेचर कुछ भी रखी जा सकती है, कोई इतना इशू नहीं है। तो हमदर्द यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोग्राम हैज डिफाइंड दैट इसका पहला पी हो जो टेक एंड इंटरडिसिप्लिनरी एंड इंटीग्रेटिव अप्रोच टू एड्रेस एंड सॉल्व इंजीनियरिंग इश्यूज इन ब्रॉड सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट। इस पीओ में उनकी जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स हैं या जो रेलेवेंट ओबी कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनकी स्ट्रैटेजी है कि स्टूडेंट जो है वो एक अच्छी साउंड टेक्निकल नॉलेज रखता होगा या रखती होगी। The second statement says he or she has the intellectual independence and leadership skills to critically evaluate information and to take creative course of action. ये टारगेट कर रहा है लीडरशिप स्किल्स की तरफ। थर्ड वन is practice the habits of a lifelong learning necessary for a good human being and a sound professional. ये बात हो रही है उसकी एटीट्यूड की तरफ कि he or she should be a good human being। ठीक है, 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको उन्होंने टारगेट किया और इसी को मेजर या कैलकुलेट किया जाता है आफ्टर 5 years ऑफ ग्रेजुएशन। ठीक है, आई रिपीट कि इट्स नॉट नेसेसरी कि ये 5 साल का ही स्पैन हो, 3, 4, 5 साल जो भी यूनिवर्सिटी रखेगी उतने साल ग्रेजुएशन के बाद इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। As far as the PLOs, program learning outcomes are concerned, program learning outcomes are narrower statements that describe what students are expected to know and be able to do by the time of graduation. These relate to the knowledge, skills and attitude that the students acquire while progressing through the program. ये वो ऑब्जेक्टिव्स या ये वो टारगेट्स हैं या ये वो स्किल सेट हैं जो आप अपने ग्रेजुएट में प्रोड्यूस करना चाहते हैं बीइंग अ फैकल्टी मेंबर। ठीक है, आपने एक फ्रेश स्टूडेंट इनटेक किया, ठीक है, इन द फर्स्ट सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर या 4 साल आप उसे पढ़ाने के बाद उसके अंदर क्या क्या स्किल सेट होंगी, क्या क्या खुशियात, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी, दोज आर नेम्ड एज योर प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स। आप हर कोर्स जो उसे पढ़ा रहे हैं, हर लैब जो आप उसे कंडक्ट करवा रहे हैं, FYP जो करवा रहे हैं, इंटर्नशिप आप करवा रहे हैं, ट्यूटोरियल आप करवा रहे हैं, जो भी एक्टिविटी उसके साथ उसकी ग्रूमिंग उसकी ट्रेनिंग में आप कर रहे हैं, वो किसी ना किसी स्किल से रिलेट होगी, यानी कि वो किसी ना किसी प्रोग्राम लर्निंग आउटकम के साथ मैप होगी। अच्छा, एबिट के कुछ ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स हैं जिसको इंजीनियरिंग काउंसिल जो है, पाकिस्तान की इंजीनियरिंग काउंसिल एज PLO लेती है। ये 12 एट्रीब्यूट्स हैं, कॉमन हैं और जगहों पर भी इसी तरह हैं। अगर हम NCEAC के PLOs देखें वो भी काफ़ी इसी से मिलते जुलते हैं, क्योंकि ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हर प्रोग्राम, वेदर दैट इज़ अ बिजनेस प्रोग्राम, वेदर दैट इज़ अ इंजीनियरिंग प्रोग्राम और कंप्यूटर साइड प्रोग्राम, वो सब यही स्किल सेट प्रोड्यूस करना चाहते हैं। नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्व करने की सलाहियत, डिज़ाइनिंग की सलाहियत, किसी प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने की सलाहियत, मॉडर्न टूल्स यूजेज, इंजीनियरिंग सोसाइटी, environment and sustainability, ethics, individual and teamwork, communication, project management, lifelong learning। इन स्टेटमेंट्स को यहाँ हम जिक्र नहीं कर रहे बेसिकली क्योंकि इस वक्त हमारे स्कोप से थोड़ा सा बाहर हो रही हैं और इट्स क्वाइट सिंपल कि स्टेटमेंट्स को डिफाइन कर रही हैं कि ये क्या है। बेसिकली ये 12 स्किल्स हैं, ठीक है, 12 स्किल्स हैं जो आप अपने ग्रेजुएट में डेवलप करना चाहते हैं। इन्हीं 12 स्किल्स को डेवलप करने के लिए आप उसे 8 सेमेस्टर्स पढ़ाते हैं, इंटर्नशिप करवाते हैं, प्रोजेक्ट देते हैं, लैब्स करवाते हैं, FYP करवाते हैं, प्रेजेंटेशंस लेते हैं, फील्ड विजिट करवाते हैं एक्सेट्रा। तो आपकी हर एक्टिविटी किसी न किसी स्किल की तरफ मैप होती है और आप उसे उसे किसी न किसी PLO के साथ लिंक अप करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम असेसमेंट पे। असेसमेंट से मुराद जो है, अगर हम लघुवी माने पे जाएं तो उर्दू में से कहते हैं जांचना। आप किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, जांच रहे हैं कैसी है, अच्छी है, बुरी है, एक्सेट्रा। सो एज फार एज वेबिनार इज कंसर्न, इसमें हम असेसमेंट के 2 ही कैटेगरीज कर रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असेसमेंट। नाम पे गौर कीजिए, डायरेक्ट यानी कि आप रिजल्ट जो है ना बिल्कुल सामने से ले रहे हैं। इनडायरेक्ट यानी कि सामने से नहीं ले रहे, यू आर रिपीटिंग इट, किसी और तरीके से आप असेसमेंट कर रहे हैं। अच्छा, हमारी जो असेसमेंट है उस ये जो OBE सिस्टम है इसमें दोनों ये फीचर्स इनकॉर्पोरेट करते हैं। कुछ जगह पे आपको डायरेक्ट असेसमेंट पे जाना पड़ता है, कुछ जगह पे आपको इनडायरेक्ट असेसमेंट पे जाना पड़ता है।
अब ये होती क्या है? If I talk about direct assessment, it involves looking at the actual samples of student work produced in our programs. ठीक है, इस आपने जो भी पढ़ा है, बच्चे ने जो भी सॉल्व किया है, उसको जो आप इवेल्युएट कर रहे हैं वो डायरेक्ट असेसमेंट में आएगा. A professional makes a decision. In our case, professional means a faculty member makes a decision regarding what a student learned and how well it is learned. डायरेक्ट असेसमेंट में एक टीचर ये चीज़ कैलकुलेट करता है, मालूम करता है कि स्टूडेंट ने कितना सीखा और कितना क्या सीखा और कितना अच्छा सीखा. ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करूं, वेदर यू कंडक्ट अ टेस्ट, सरप्राइज क्विज, अनाउंस क्विज, शेड्यूल्ड क्विज, मिड, फाइनल, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, ये सब क्या है? डायरेक्ट असेसमेंट. क्यों? स्टूडेंट इज देयर. ठीक है, आप डायरेक्टली उसको कोई चीज़ दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए, एंड ही और शी इज सॉल्विंग दैट. तो आप डायरेक्टली वट एवर द प्रूफ्स आर, जो एक्चुअल सैंपल्स आपको सामने मिले, आपने उसकी बेसिस पे उसकी वैल्यूएशन कर ली. दिस इज इनडायरेक्ट, दिस इज डायरेक्ट असेसमेंट. ठीक है, कॉमन है, यानी कि हम ओबीज के अलावा भी अगर नॉर्मल प्रोग्राम के तौर पे पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, तब भी हम डायरेक्ट असेसमेंट ही कर रहे होते हैं. क्यों? क्विज असाइनमेंट कॉमन है, मिड, फाइनल एग्जाम नॉर्मल प्रोसीजर का हिस्सा है. डायरेक्ट असेसमेंट इज नॉर्मली इन प्रैक्टिस with my showing. As far as the indirect assessment is concerned, indirect assessment is about gathering information through means other than looking at the actual samples of student work. In this case, आप student ने whatever he or she has solved, you are not picking that one. आप किसी और तरीके से मालूम कर रहे हैं कि whether he or she is capable of solving such a question or not. क्या इसमें फला सलाहियत है या नहीं. लेकिन ये आप डायरेक्टली मालूम नहीं कर रहे हैं, उसके एक्चुअल सैंपल नहीं ले रहे, किसी और तरीके से मालूम कर रहे हैं. द स्टूडेंट डिसाइड्स व्हाट ही और शी लर्न एंड हाउ वेल इट वाज लर्न. इन दिस केस अगर आप बच्चे से, स्टूडेंट से ही इनपुट ले रहे हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट डिसाइड करेगा या करेगी कि व्हाट शी हैज़ लर्न एंड हाउ वेल इट वाज लर्न और इट इज़ बीइंग लर्न. ये उसने डिसाइड करना. अच्छा, इसकी मिसाल मैं अगर देना चाहूँ तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से दे सकता हूँ. प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स. प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स दो तरह से असेस हो सकते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट. आप जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, आपने उसके लिए CLO डिफाइन किया, CLO1 सम स्टेटमेंट विच इज़ बीइंग मैप्ड विद PLO1. आपने उस CLO1 से रिलेटेड एक क्विज दिया और स्टूडेंट ने उस क्विज में मार्क्स लिए और ही और शी सिक्योर्ड सम वैल्यू और नंबर इन PLO1. क्यों? क्योंकि PLO1 से लिंक था CLO1. दूसरा तरीका हो सकता है इनडायरेक्ट असेसमेंट. एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन, या वो स्टूडेंट पास आउट होने वाला है, अपने एग्जाम से फारिग हो गया, उस वक्त आप उससे एक क्वेश्चन फिल करवाते हैं और उससे पूछते हैं कि जस्ट टेल मी व्हाट इज योर कैपेबिलिटी रिगार्डिंग इंजीनियरिंग नॉलेज. इंजीनियरिंग नॉलेज इज द PLO1. तो वहाँ पर वो अपनी कैपेबिलिटी बताएगा कि जी मेरे हिसाब से, यानी कि स्टूडेंट के हिसाब से, he or she has 60% capability of engineering knowledge or 50%, 80%, 90%, etc. ठीक है, तो ये क्या है? ये एक मिसाल है इनडायरेक्ट असेसमेंट की. पहला केस था कि वही चीज़ आपने मालूम की थ्रू क्विज असाइनमेंट, और दूसरा केस ये कि आप उससे खुद पूछ रहे हैं कि जी आप अपनी स्लाइड के बारे में क्या समझते हैं. ठीक है, इसका अदर वे आउट भी है कि आप बच्चे की इसी सलाहियत के बारे में किसी और से पूछें. फॉर एग्जाम्पल, ही और शी हैज़ डन सम इंटर्नशिप. नॉर्मली थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के दरमियान हम इंटर्नशिप स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं और करवाते हैं या इंडस्ट्रीज में भेजते हैं. तो उस वक्त जो इसका एम्प्लॉयर है उससे पूछें इसकी इंजीनियरिंग नॉलेज वाले स्किल सेट के बारे में, और वो जो इनपुट देता है उसको फिर आप काउंट करें. दिस इज इनडायरेक्ट असेसमेंट. क्यों? क्योंकि डायरेक्टली आपके बच्चे के एक्चुअल सैंपल्स नहीं मिल रहे. यू आर टेकिंग द इनपुट और कमेंट्स फ्रॉम सम अदर मीन. एग्जाम्पल: सर्वेज इंक्लूडिंग एग्जिट सर्वे, alumni survey, internship survey, employer survey, etc. ये सब indirect assessment में आएंगे. I hope the difference is clear कि direct assessment में जो बच्चे के actual sample है, whatever he or she has solved और done, आप उसकी basis पे assessment कर रहे हैं. Indirect में आप directly जो उसने solve किया होता है वहाँ से assess नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि आप पूछ रहे होते हैं या किसी और तरीके से मालूम कर रहे हैं. ठीक है, you don't have the actual samples of student work. आप उसके इमीडिएट हेड से पूछते हैं, FIP सुपरवाइजर से पूछ लेते हैं, स्टूडेंट से खुद पूछ लेते हैं,
ठीक है, या कोई और तरीका करते हैं। ऑब्वियसली जो भी अब जितनी बातें मैंने कहीं पूछ लेते हैं, स्टूडेंट, सुपरवाइजर, इंटर्नशिप, एम्प्लॉयर एक्सेट्रा। अब इस चीज़ को पूछने का क्या तरीका है? सर्वे फॉर्म्स, सर्वेज ही हैं। सर्वे से फिर आप वो चीज़ इनपुट ले लेते हैं। अच्छा, डिजाइनिंग इनडायरेक्ट असेसमेंट टूल्स विद रियलिस्टिक केपीआईज। अब यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है केपीआई, विच इज़ अ कॉमन टर्म। हम इंजीनियरिंग में या किसी भी मैनेजमेंट के अगर कोर्स पढ़ा रहे होते हैं, केपीआईज आर कॉमन। KPIs stands for Key Performance Indicator. It is a measure used to define and evaluate how successful an organization or something is. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की KPI की बात करें तो वो बता देती है कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी सक्सेसफुल है। अगर आप सिस्टम के KPI की बात करें तो फिर अगर आपका KPI अचीव हो जाता है तो आप कह देते हैं कि और सिस्टम जो वो इतना बेहतर है एक्सेट्रा। तो इट डिपेंड्स कि किसके लिए करें। KPI, आई रिपीट, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। द नेम सेज इटसेल्फ व्हाट इट इज। इट इज़ द परफॉर्मेंस इंडिकेटर कि जी जो भी काम किया जा रहा है, जो भी सिस्टम आप जिसके KPI सेट कर रहे हैं, अगर वो अचीव हो जाते हैं, ओके मीन्स के इट इज़ सक्सेसफुल। ठीक है, KPI अगर वो अचीव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो इनडायरेक्ट असेसमेंट की भी एक KPI होगी। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि अगर आप सिस्टम विजिट करते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का, या जो भी न्यूली इस सिस्टम में आई हैं, तो वहाँ पर कुछ गलतियाँ ये हो जाती हैं कि वो KPIs ना वो रियलिस्टिक नहीं रखते हैं। वो या तो बहुत ही वेल बिलो एवरेज रख देते हैं, या इतना रख देते हैं कि जो अचीव नहीं हो सकता। तो जो KPIs, वॉट एवर द सिस्टम यू आर डिज़ाइनिंग, या आप कोई सर्किट भी बना रहे हैं, या कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हैं, उसकी जो KPI दैट शुड बी रियलिस्टिक। हम अपनी बात करें, हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें, तो बेसिकली इनडायरेक्ट असेसमेंट हम कंडक्ट करेंगे और उसकी बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि वेदर द स्किल इज़ बीइंग डेवलप्ड और नॉट। तो उसके लिए कुछ हमें KPI सेट करने पड़ते हैं। तो KPI शुड बी रियलिस्टिक। एक सजेशन ये होती है कि नॉर्मली स्टार्ट में जो एवरेज है उससे करीब का, यानी कि एवरेज और बिलो एवरेज से ऊपर के दरमियान का आप KPI सेट करें। ठीक है, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप ग्रूम हो जाते हैं सिस्टम में, तो फिर आप उसे एवरेज से ऊपर ले आए, या फिर स्टार्ट आप एवरेज से कर सकते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम इन डिज़ाइनिंग इनडायरेक्ट असेसमेंट। इनडायरेक्ट असेसमेंट की डिज़ाइनिंग में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, या आम गलतियाँ जो क्या मिलती हैं। हमने बात की इनडायरेक्ट असेसमेंट है क्या, कि आप कोई भी क्वालिटी देखना चाह रहे हैं कि वो डेवलप हुई है, स्किल डेवलप हुई है नहीं, तो उसके लिए आप कोई और तरीका यूज़ करते हैं। तो वो कोई और तरीका जिस तरह आप इनपुट ले लेंगे, ऑब्वियसली दैट विल बी अ सर्वे फॉर्म। सर्वेज ही फिल करवाएंगे और उसकी बेसिस पर डिसाइड करेंगे। तो यहाँ आमतौर पर प्रॉब्लम क्या होती है, इफ़ वी टॉक अबाउट प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, POs की हम बात करें, प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की, तो नॉर्मली यूनिवर्सिटी स्टार्टिंग में क्या करती हैं कि वो HEC का जो सर्वे परफॉर्मर्स हैं उनको मनोमन मान लेते हैं, या एज इट इज़ दे आर गोइंग टू यूज दैट। Now the problem is कि if you are using the HEC survey performance, it's not bad, okay, that is being well written etc. लेकिन क्या वो आपके POs के साथ मैप कर रहा है या नहीं? अगर आप HEC के सर्वे परफॉर्मेंस यूज कर रहे हैं तो you have to make sure, or the person who is designing, if I should say OB coordinator, has to make sure that the questions which are being asked in the HEC survey performance are related to or can be linked with your POs. अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये चीज़ गलती है। नाउ दिस इज़ अ कॉमन मिस्टेक जो पाई जाती है कि HEC के सर्वे परफॉर्मेंस यूज़ कर लिए जाते हैं और वो POs से उनके सवाल मैप या लिंक या मैप नहीं हो रहे। ठीक है, तो the questions are not correctly mapped with respective POs. In our university, we are using the survey performance, but we have modified the survey performance. उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं और बाकी क्वेश्चंस को लिंक अप किया। ठीक है, इसी तरह हर यूनिवर्सिटी ने अपने तौर पर प्रैक्टिस की है। तो यहाँ पर मेजर रोल आ जाता है तो OB कोऑर्डिनेटर, और उसके बाद फिर रेलिवेंट फैकल्टी मेंबर, और फिर मेंबर ऑफ BOS, POF एक्सेट्रा, कि वो इस चीज़ को क्लोजली ऑब्जर्व करें कि जो सर्वे क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो असेसमेंट टूल्स हैं, वो दे शुड बी रिलेटेड टू द पैरामीटर जिसको आप मेजर करना चाह रहे हैं। यहाँ पर मैंने मिसाल ली है PEOs की, प्रोग्राम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स।
प्रोग्राम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स की। सो द क्वेश्चन शुड बी रिलेटेड और मैप विद योर पीओज। आपने जो भी पीओज डिफाइन किए हैं आपके प्रोग्राम में, क्वेश्चन उससे लिंक अप करने चाहिए या मैप होने चाहिए। The next problem is in continuation with the previous point, the calculation matters, including conversion of qualitative to quantitative, which is not being properly done. And now एक प्रॉब्लम और देखने में आती है कि आपने सर्वे क्वेश्चंस दे दिए, दे आर लिंक, लेकिन आप उसको किसी नंबर से अगर आप मैप करना चाह रहे हैं, मीन्स सर्वे का जो इनपुट है वो आ रहा है वर्स, गुड, बैड, पुअर, एक्सेलेंट, एक्सेट्रा, और आप उसको किसी क्वांटिटेटिव या क्वांटिटी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो दैट शुड बी प्रॉपर्ली डन। वो सही होना चाहिए, ये कन्वर्जन जो है उस पर आपने वर्किंग की। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करूँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हमने ये प्रॉब्लम देखी, लेकिन वो इट्स नॉट अ ब्लंडर, समथिंग लर्निंग है हमारी और सबकी। वहाँ पे ये कि उन्होंने पीओज की अटेनमेंट के लिए 2 प्रोसेसेस डिफाइन किए। उन्होंने कहा जी वी विल कंडक्ट एलुमनाई सर्वे, वी विल कंडक्ट एम्प्लॉयर सर्वे। ओके, इट्स फाइन। सो अगर आप ये दोनों सर्वेस कंडक्ट करवाते हैं तो अब बात ये है कि आपने कहा कि मेरा जो PO 1 है वो एलुमनाई और एम्प्लॉयर सर्वे से आएगा। एलुमनाई सर्वे का KPI आपने रखा 50%, एम्प्लॉयर सर्वे का KPI रखा 50%, और उसमें आपने डिफाइन किया कि जब ये दोनों अचीव हो जाते हैं तो इसका मतलब अचीव हो जाएगा, या आगे आपने फर्दर डिफाइन नहीं किया। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम अक्सर वैसे देखी गई है कि उन्होंने एलुमनाई सर्वे और एम्प्लॉयर सर्वे दोनों की KPI बताए, लेकिन ये नहीं बताया कि व्हाट विल हैपन कि इफ एलुमनाई सर्वे KPI इज बीइंग अचीव्ड बट नॉट द एम्प्लॉयर सर्वे KPI इज अचीव्ड, व्हाट विल हैपन इन दैट केस। एलुमनाई कह रहा है कि जी ओके इट्स फाइन, वो KPI अचीव हो जाता है, एम्प्लॉयर का KPI अचीव नहीं होगा, तो इन दिस केस आप उसे किस तरह लेंगे। सो यहाँ पर एक डिसीजन होना चाहिए कि जी आप एम्प्लॉयर से जो इनपुट ले रहे हैं और एलुमनाई से जो इनपुट ले रहे हैं, उन दोनों का कोई एक कंबाइंड फार्मूला भी बनना चाहिए। ये आई थिंक ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, लेकिन अभी मैं एक फ्लो चार्ट में इस चीज़ को और समझाऊंगा तो ये प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी कि मैं एड्रेस क्या करना चाह रहा हूँ या बात किस बारे में करना चाहिए। Okay, the input from irrelevant stakeholders are taken. Now this is a problem. Indirect assessment, you have to make sure that you contact or take input from the relevant stakeholders. For example, हम POs की बात करें, प्रोग्राम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। प्रोग्राम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स में आप एनरोल्ड स्टूडेंट जो पढ़ रहा है उससे आप इनपुट नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज ही और शी इज नॉट लिंक्ड विद दैट POs। क्यों? क्योंकि उसका जो मामला है वो तो अभी POs तो आप मेजर ही करते हैं ग्रेजुएशन के 3, 4 या 5 साल बाद, तो बेसिकली स्टूडेंट तो वो तो अभी ग्रेजुएट ही नहीं हुआ, तो वो किस तरह इनपुट दे सकता है। तो ही और शी इज द इररिलेवेंट स्टेक होल्डर इन दिस केस। इसी तरह पेरेंट्स आर आल्सो स्टेक होल्डर्स, लेकिन आप पेरेंट्स का POs में इनपुट नहीं ले सकते क्योंकि पेरेंट्स दे आर स्टेक होल्डर्स, बट नॉर्मली इन चीज़ों का वो आइडिया या इदराक नहीं रखते, तो इसलिए उनसे इस बारे में इनपुट लेना वो ठीक नहीं, ठीक है। और इसी तरह यानी कि अभी हम आगे चल के मिसाल में भी देखेंगे कि वी शुड टेक इनपुट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट असेसमेंट, वी शुड टेक इनपुट फ्रॉम द रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स एंड नॉट द इररेलेवेंट वंस। इररेलेवेंट वंस वो है जिनका उस चीज़ से ताल्लुक फिल वक्त नहीं, ठीक है। सो दीज आर 3 मेन प्रॉब्लम्स व्हिच आई नॉर्मली नोटिस, और ये सभी नोटिस करते हैं, ठीक है। तो इनको देखने की ज़रूरत होती है। अच्छा, सर्वे फॉर्म फॉर POs। अब मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल हमदर्द यूनिवर्सिटी के पुराने सर्वे फॉर्म शो कर रहा हूँ रिगार्डिंग POs। POs क्या हैं? प्रोग्राम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ऐसे टारगेट, ऐसी खसूसियात जो ग्रेजुएशन के 5 साल बाद आपके ग्रेजुएट में प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। जब आदमी स्टूडेंट ग्रेजुएट हो गया और 5 साल बाद उसने मार्केट में सर्व किया, तो इस वक्त अब 2 ही लोग हैं जो स्टूडेंट के बारे, एलुमनाई के बारे में बता सकते हैं। एक तो एलुमनाई हिमसेल्फ और हरसेल्फ, फर्स्ट वन, और दूसरा उसका बॉस।
एम्प्लॉयर या इंडस्ट्री। उसके अलावा टीचर भी नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? टीचर इस वक्त इररेलेवेंट स्टेक होल्डर हो गए हैं। वो क्यों इररेलेवेंट हो गए हैं? वो इसलिए क्योंकि अब ग्रेजुएशन के बाद 5 साल उसने स्टूडेंट नहीं, जो कि अब एलुमनाई हो चुका है, उसने मार्केट में सर्व किया, तो मार्केट नोज बेटर अबाउट हिम और हर। ठीक है। अच्छा, अब मैं कुछ फॉर्म शो करना चाहूँगा। ये एम्प्लॉयर सर्वे फॉर्म है हमदर्द यूनिवर्सिटी का। इट वाज बीइंग यूज्ड इन 2018। ठीक है। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं, हमने क्या किया, हमने भी स्टार्ट किया था HEC सर्वे क्वेश्चंस से, सर्वे परफॉर्मेंस से, इट्स नॉट बैड। बस हमने उसमें कुछ चीज़ें ऐड सब्ट्रैक्ट कर दी, मोस्टली ऐड की। ठीक है। और उन एडिशन को हमने डिफाइन किया था। फॉर एग्जांपल हमारी जो हमारा जो पहला PEOs है, या हमदर्द यूनिवर्सिटी का जो पहला PEO जो उस वक्त था, that says the student can take interdisciplinary or integrative approach to address and solve engineering issues in broad societal context. So basically ये टेक्निकल नेचर या टेक्निकली साउंड होने की तरफ इसकी बात है। तो हमने उसमें रिलेट किया कि जो आपकी मैथ साइंस की एबिलिटीज़ हैं, प्रोफेशनल डिसिप्लिन में प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन की स्किल्स हैं, कलेक्टिंग एनालाइजिंग डाटा, थ्योरी टू प्रैक्टिस लिंक है, एबिलिटी टू डिज़ाइन अ सिस्टम कंपोनेंट, कंप्यूटर नॉलेज, एबिलिटी टू टेक इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेटेड अप्रोच, एबिलिटी टू सॉल्व इंजीनियरिंग इशूज़। ये जो 8 सवाल थे, हमने इनको लिंक कर दिया किसके साथ? PO1 के साथ। क्योंकि हमारे हिसाब से ये जो 8 सवाल हैं, इसमें 6 सवाल नोट दैट, 6 सवाल HEC वाले ही हैं, 2 सवाल हमने इसमें ऐड किया। ये जो 8 सवाल हैं, ये पहले PO का इनपुट बन जाता है, क्योंकि इसमें हर जो इसमें मामला है उसको हम डिफेंड कर सकते हैं विजिटेशन टीम के सामने कि जनाब दिस क्वेश्चन इज बीइंग रिलेटेड विद दिस स्टेटमेंट, टेक एन इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेटिव अप्रोच टू एड्रेस एंड सॉल्व इंजीनियरिंग इश्यूज इन ब्रॉड सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, इसी तरह हमारे जो बाकी PO2 हैं, PO3 हैं, उनको फिर हमने सर्वे क्वेश्चंस के साथ लिंक किया। अब लिंक कर लिया और इसी तरह ये एम्प्लॉयर सर्वे था, इसी तरह एलुमनाई सर्वे को भी हमने लिंक कर लिया। ये 2018 का क्वेश्चन है, इसको लिंक कर लिया। और एक हमने परफॉर्मा बना लिया कि जी जिसमें डिफाइंड है कि कौन कौन से सवालात किस किस चीज़ के साथ लिंक है। इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ कि हमें भी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और जो विजिटेशन टीम है उसको भी समझाने में आसानी होती है। अच्छा, उसके बाद ये एक ब्लॉक डायग्राम है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ PO अटेनमेंट मैकेनिज्म। इस ब्लॉक डायग्राम में हम ये समझाते हैं कि हमारा PO अटेन हुआ है या नहीं। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फॉर दिस ब्लॉक डायग्राम इज वैलिड फॉर एवरी PO। We note that we got 3 POs, PO1, 2, जो हमने एग्जाम्पल ली हमदर्द यूनिवर्सिटी की। तो इन दैट केस वी गॉट 3 POs, PO1, PO2, PO3। सो ये पूरी ब्लॉक डायग्राम PO1 के लिए भी वैलिड है, PO2 के लिए और फिर PO3 के लिए। अल्टीमेटली इफ यू नोटिस तो राइट साइड पे PO की कैलकुलेशन हो रही है, PO_X, X इज सम नंबर 1, 2 और 3, क्योंकि देयर आर इन द एग्जाम्पल देयर आर ओनली 3 POs। This is equals to 0.8 times of y plus 0.2 times of z। अब ये y और z क्या है उसको हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। Now come to on the left hand side. On the left hand side, employer survey questions mapped with PO_X। If we are talking about PO1, तो इसमें वो questions होंगे जो employer survey के वो questions जो PO1 से relate करते हैं। Similarly, employer survey दो कुछ questions of alumni survey which are being mapped with PO1। अब on the if we move towards right, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर क्वेश्चन का जो आउटपुट आ रहा है उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। से वी गॉट 10 स्टूडेंट्स या हमने 10 लोगों से 10 एम्प्लॉयर्स और 10 एलुमनाई से इनपुट लिए। सो हमारे पास 10 परफॉर्मर्स आ गए एलुमनाई के, 10 परफॉर्मर्स आ गए एम्प्लॉयर के। तो पहला सवाल, दूसरे सवाल, तीसरे सवाल, 8 सवालों के लिए फिर ये 8 इनपुट आएंगे। यहाँ पे हम काउंट करते हैं कि उन 10 में से पहले सवाल के अगेंस्ट कितने लोगों ने A, B और C दिया। उस A, B और C वालों को जमा किया और उसको टोटल से डिवाइड कर दिया। बाकी D और E को हम काउंट नहीं कर रहे। इसी तरह यही काम हमने हर सवाल के लिए किया।
अब वट एवर द आउटपुट इज उसको हमने एवरेज कर लिया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो ये जो 8 सवाल है उसका एवरेज आ गया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। देन हमने ये चीज चेक की वेदर दिस एवरेज इज ग्रेटर देन 50% और नॉट। ये एम्प्लॉयर का इनपुट आया है PO1 से रिलेटेड। सिमिलरली फॉर द लोअर साइड एलुमनाई का जो इनपुट आया है वी आर रिप्रेजेंटिंग दैट वन एज Z। इफ Z इज ग्रेटर देन 50% और नॉट। इफ Z इज ग्रेटर देन 50% वो कैलकुलेशन में जाएगा। इफ Y इज ग्रेटर देन 50% वो कैलकुलेशन में जाएगा। अब यहाँ पर PO1 की कैलकुलेशन हो रही है वेदर द PO1 हैज बीन अचीव्ड और नॉट। तो PO1 का यहाँ कंबाइंड फॉर्मूला बन रहा है जिसमें द यूनिवर्सिटी इज गिविंग 80% वेटेज टू द एम्प्लॉयर इनपुट एंड 20% वेटेज फॉर द एलुमनाई इनपुट। अब इट्स अप टू यू, आप सेम रख सकते हैं, ठीक है, इट्स फाइन। लेकिन जो एग्जाम्पल में यूनिवर्सिटी ली गई है उन्होंने 80% वेटेज जो है वो इमीडिएट हेड बॉस या एम्प्लॉयर को दी। वो इसलिए कि एक आदमी, उनकी अपनी थिंकिंग है, एक आदमी जो है वो अपनी एवेल्यूएशन में तो हमेशा अपने आप को अच्छा ही करेगा, बट हिज और हर बॉस नोज बेटर कि जनाब वेदर दिस पर्सन मेल और फीमेल हैज सच अ कैपेबिलिटी और नॉट। सो इन दिस केस यहाँ पर ये कंबाइंड फार्मूला बन जाता है। अब हमारे यहाँ वहाँ पे जो आम मिस्टेक जो अभी हम पिछली स्लाइड में बात कर रहे थे वो ये होती है कि कुछ जगह पे जहाँ पे सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है वहाँ पे ये निकाल दिया कि जी एम्प्लॉयर सर्वे इनपुट इज ग्रेटर देन 50% or not, alumni survey input is greater than 50% or not. But what is the combined formula? क्या ये दोनों अचीव होंगे तभी अचीव होगा या दोनों में से कोई भी एक अचीव हो गया तब आपका PO1 अचीव हो जाएगा? तो there should be some formula or some mechanism. In the case which is under discussion, in this case there is a combined formula of 80% to 20% weightage. Now tools दो ही हैं, alumni survey, employer survey. Stakeholders alumni हैं. The example is related to POs, program educational objectives, which are being calculated after 5 years of graduation. So उस वक्त alumni input दे सकते हैं, employer input दे सकते हैं, employer और industry. Students input नहीं दे सकते, those are irrelevant stakeholders. Similarly, parents cannot give input. और यहाँ पे मैंने एक और चीज़ मेंशन नहीं की, similarly the faculty members cannot give input. Again, those are irrelevant stakeholders for in this case. क्यों? Student has passed out and served in the market for 5 years. तो 5 साल तक स्टूडेंट और टीचर कनेक्शन में नहीं थे और किसी तरह असेसमेंट हो नहीं सकती. So the two best options are alumni or employer. ये stakeholders. Example, survey forms for PLOs. अच्छा, PLOs की normally calculation that is being done by direct assessment. It's very simple. Direct assessment से आप हर कोर्स में जितना पढ़ा रहे हैं, whatever you are teaching, tutorials, mid, exam, quizzes, presentations, projects, ठीक है, all those are direct assessment. वहाँ से PLO का आपको एक नंबर आ जाता है. You can go for indirect assessment as well. ठीक है. Now कुछ accreditation bodies जो है वो लिमिट करती हैं कि जी आप PLO की जो कैलकुलेशन है या एवेल्यूएशन है उसको डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट के कम्बिनेशन से करें. आई रिपीट, कुछ एक्रेडिटेशन बॉडीज जो हैं वो सजेस्ट करती हैं, बल्कि इन अदर वर्ड्स दे फोर्स यू कि यू असेस द PLOs या कैलकुलेट द PLOs फ्रॉम बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेज. ठीक है. इफ़ यू टॉक अबाउट इंजीनियरिंग काउंसिल, तो इंजीनियरिंग काउंसिल के रूब्रिक्स में भी ये बात मेंशन है कि आपने इन दोनों को एड्रेस करना है रिगार्डिंग PLOs. अच्छा, अब PLOs की बात करें, PLOs के इनडायरेक्ट असेसमेंट टूल्स की बात करें. पहली चीज़, द क्वेश्चन शुड बी क्लोजली रिलेटेड टू PLOs. PLOs में जो भी आप 12 स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो इफ़ यू आर डिजाइनिंग सम क्वेश्चनएयर, द क्वेश्चंस ऑफ द क्वेश्चनएयर मस्ट बी रिलेटेड टू द PLO एंड नॉट सम इररिलेवेंट थिंग्स. क्यों? इफ़ यू गेट विजिटेशन टीम, आपको यू हैव टू डिफाइन दीज असेसमेंट टूल्स इन फ्रंट ऑफ दोज मेंबर्स, विजिटेशन मेंबर्स. स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो सकते हैं? स्टूडेंट्स. PLOs की बात हो रही है, स्टूडेंट्स आर द मेजर स्टेक होल्डर्स बिकॉज दे आर अंडर योर गाइडेंस और प्लस वो उस वक्त इनरोल्ड हैं. एम्प्लॉयर,
नॉट द एम्प्लॉयर हु इज ऑफरिंग द जॉब। क्यों? स्टूडेंट हैज नॉट पास्ड आउट, वो ग्रेजुएट नहीं हुआ तो जॉब तो नहीं हो सकती इसके पास। सिर्फ वो एम्प्लॉयर उसमें इनपुट दे सकता है जिसने इंटर्नशिप ऑफर की। सो एम्प्लॉयर हु ऑफर्ड इंटर्नशिप, स्टूडेंट्स ऑब्वियसली, एलुमनाई नहीं हो सकते। पीएलओ की बात हो रही है, पीएलओ तो रिलेट ही उस वक्त करते हैं जब स्टूडेंट पढ़ रहा है, इंडस्ट्री इनपुट नहीं दे सकती। आई रिपीट, इंडस्ट्री का वो फैक्टर जो इसे इंटर्नशिप ऑफर की वो इनपुट दे सकता है, नॉट द जॉब गिवन पर्सन। क्यों? क्योंकि द स्टूडेंट हैज नॉट ग्रेजुएटेड येट, पेरेंट्स इनपुट नहीं दे सकते इसमें, ठीक है। टूल्स की बात करें, टूल्स में, असेसमेंट टूल्स में इंटर्नशिप सर्वे हो सकता है। आमतौर पे हम हर प्रोग्राम में तीसरे और चौथे साल के दरमियान में इंटर्नशिप करवाते हैं। दूसरे और तीसरे साल के दरमियान भी बच्चे इंटर्नशिप करते हैं अपने तौर पे, आमतौर पे अपने तौर पे करते हैं। बेहतर है कि उसको आप काउंट ना करें, लेकिन थर्ड ईयर और फाइनल ईयर की जो इंटर्नशिप है उसको काउंट जरूर करें। तो इंटर्नशिप सर्वे, सो द पॉसिबिलिटी इज डिज़ाइन इंटर्नशिप सर्वे परफॉर्मा विद रेलिवेंट क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस जो है वो किसी न किसी पीएलओ के साथ मैप हो रहे हैं, और स्टूडेंट को आप पकड़ा दें कि जनाब जब भी आप वापस आ रहे हैं इंटर्नशिप से, इस परफॉर्मा को फिल करवाइए और साथ में एक इंटर्नशिप रिपोर्ट जमा करवाइए। एग्जिट सर्वे, एग्जिट सर्वे वो सर्वे परफॉर्मा होता है जो स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस या यूनिवर्सिटी से जाते वक्त जमा करवाते हैं। कुछ जगह पे दिस सर्वे परफॉर्मा इज ऑल्सो नेम्ड एज ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट सर्वे, ठीक है। तो जो भी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट सर्वे है वहाँ पर भी जो आप सवाल दें उसको किसी न किसी पीएलओ से लिंक कर दें। माइंडेड कि एचईसी ने अपना एक एग्जिट सर्वे, एक ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट सर्वे दिया हुआ है, अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं ओके इट्स फाइन, लेकिन दैट शुड बी क्लोजली, द टूल्स और क्वेश्चन शुड बी क्लोजली रिलेटेड टू द पीएलओज। इन दैट केस जो गिवन है सारे पीएलओ से रिलेटेड सवाल नहीं है, तो बेहतर है कि आप उसे अपग्रेड कर लें। दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप एचईसी का जो एग्जिट सर्वे परफॉर्मा है, अगर आप एग्जिट सर्वे को पीएलओ की इनडायरेक्ट असेसमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर लें, कुछ सवाल उसमें ऐड कर लें कि जो उन पीएलओज को एड्रेस कर रहे हों जो उसमें सवाल में नहीं दिए गए। So if you are going for indirect assessment of PLO, so assessment, these are the two possible assessment tools, or students and the employer who offered the internship can do the job, they can fill the questionnaire. Merging the indirect assessment, the existing system. अब एक चीज़ ये कि आपका existing system यूनिवर्सिटी का काम कर रहा होता है, if you are new in this system, अगर आपका जो प्रोग्राम है ऑलरेडी OB बेस्ड है और फर्दर असेस कर रहे हैं तो फिर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। बट इफ़ यू आर अ न्यू प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल अभी टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज NABAC जो बिजनेस साइड की एक्रेडिटेशन बॉडी है उसने अभी कंपल्सन नहीं की है। NCEAC is moving towards or shifting towards OBE. They have conducted one workshop for their program evaluators in Karachi about 1 year back, ठीक है। they are shifting towards that और उन्होंने एक डेडलाइन दी है, PEC मूव कर चुका है एक्सेट्रा। तो जो नए प्रोग्राम्स अब इसमें आ रहे हैं तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि दे शुड एम्बेड दिस असेसमेंट और न्यू थिंग्स और न्यू प्रोसीजर इन देयर एग्जिस्टिंग सिस्टम वेरी आई शुड से क्लेवरली। नोट दैट कि ऐसी कुछ चीज़ें जो हम उसमें सिस्टम में इंकॉर्पोरेट करना जा रहे हैं वो हर यूनिवर्सिटी या हर ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी शक्ल में उसे कर रही है, पहले से कर रही है। कुछ जगह पे कुछ चीज़ें मिसिंग है, वहाँ पर वो चीज़ आप ऐड करें। तो उसके लिए सबसे पहले मैं सजेस्ट करता हूँ कि थॉरली स्टडी द एग्जिस्टिंग सिस्टम से NCEAC की गाइडलाइंस की वजह से अब कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट जो है या प्रोग्राम जो है इस तरफ जाना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। एक्रेडिटिंग बॉडीज़ ने कह दिया ओके फाइन। तो अब उनके लिए मेरी अपनी सजेशन ये है कि सबसे पहले अपने सिस्टम को स्टडी करें कि आपका जो अपना सिस्टम है इंजीनियरिंग प्रोग्राम का, अपने जो कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम है या मैनेजमेंट साइंसेस का जो प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सी इवैल्यूएशन किस किस वक्त हो रही है। देन डिज़ाइन द असेसमेंट प्रोसीजर, इनडायरेक्ट असेसमेंट प्रोसीजर एंड गेट इट अप्रूव
from the relevant authorities. जो आपके relevant forums हैं, obviously that will be your BOS, BOF, and finally the academic council, उससे अपने assessment design करके approve करवाना, ठीक है? अच्छा, अब जो चीज़ें आपने नई करनी है, you want to introduce your thing, वो existing system के flow में आप add करें, existing system के flow में आप add करें. अच्छा, फिर इसके साथ assign responsibilities to related non-teaching departments. ठीक है, अब जो नई चीज़ें आ रही हैं तो उसको फिर आप ड्यूटी असाइन कर दें किसी एक डिपार्टमेंट को, ड्यूरिंग अप्रूवल ही ये काम करवा लें. तो उससे क्या होगा कि हर डिपार्टमेंट को पता लग जाएगा, ओके आई हैव दिस न्यू टास्क जो मुझे सर्टेन टाइम में करना है. अच्छा, जो हमारे नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल आईआरडी है, ऑरिक है, क्यूईसी है. आईआरडी से मेरे मुराद इंडस्ट्रियल रिलेशंस डिपार्टमेंट, प्लेसमेंट ऑफिस एक्सेट्रा. रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन सब में हर एक के पास एक दो करके आ जाएंगे. अनफॉर्चुनेटली क्यूईसी के पास काफ़ी काम आ जाता है, बिकॉज ओबी इज ऑल अबाउट क्वालिटी, तो उनके पास ड्यूटीज ज़्यादा आ जाती हैं. सो आई रिपीट पॉइंट नंबर 3, असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू रिलेटेड नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंस ऑफिस, प्लेसमेंट ऑफिस. नोट दैट ऑल दीज एक्टिविटीज आर समहाउ ऑलरेडी इम्पैक्टेड एट दीज डिपार्टमेंट. टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, आप जब वर्किंग करेंगे, इफ़ यू आर न्यू, आप जब वर्किंग करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो किसी ना किसी शक्ल में ये चीज़ें इन डिपार्टमेंट्स में हो रही हो. नहीं हो रही तो उससे रिलेटेड कुछ काम हो रहा होगा और फिर आप उसे ऐड करें. नाउ आई हैव फ्यू सजेशन कि जो ये असेसमेंट्स करनी है, खासतौर पर इनडायरेक्ट असेसमेंट, ये किस टाइम पे करें, कौन सा डिपार्टमेंट करें और इसके असेसमेंट टूल्स क्या होंगे. आई रिपीट दिस टेबल, जो now I'm clicking it again. This table is for suggestion only. हर यूनिवर्सिटी हर प्रोग्राम अपने हिसाब से कर सकती है. I suggest that to conduct, sorry, I suggest that to conduct the assessment of employer or alumni surveys. If you want to get the survey performance filled from the employer and alumni, it's a suggestion that जुलाई से लेके सितंबर तक हर साल से एक पीरियड रख लें, ये 2 से 3 महीने का एक्सपैन रख लें, जिसमें एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करें, अलुमनाई से कांटेक्ट करें, सर्वे परफॉर्मेंस फिल करवाएं. ये करने का मकसद ये है कि ये असल में ना जुलाई अगस्त अक्सर बेशतर यहाँ पे जो है वो समर चल रहा होता है. समहाउ जून में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, मई में स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे होते हैं. उसके बाद छोटी सी एक ब्रेक होती है. ब्रेक वो समर सेमेस्टर होता है, यानी कि रेगुलर सेमेस्टर नहीं होता. उस ड्यूरेशन में बड़ा अच्छा है कि आप एम्प्लॉयर और अलुमनाई से कांटेक्ट करें. ठीक है. अच्छा, थोड़ा सा हम इसे सजेस्ट करते हैं सितंबर में मिले हैं, ताकि अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें लोग समर में, जुलाई में छुट्टियों पे चले जाते हैं. ठीक है, साल में एक दफ़ा वो आउटिंग करते हैं अगर जो या ऑर्गेनाइजेशन उन्हें ऑफर कर रही है, तो इन दैट केस सितंबर इज़ देयर. तो आई सजेस्ट एवरी ईयर फ्रॉम जुलाई टू सितंबर कंडक्ट अलुमनाई और एम्प्लॉयर सर्विस. रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑफ QEC. अब नॉर्मली क्या होता है, यू मेक ए गूगल फॉर्म. ठीक है, गूगल फॉर्म का लिंक आप अपने अलुमनाई नेटवर्क पे भेज देते हैं, वो लोग उसे फिल कर देते हैं. सिमिलरली यू कॉन्टेक्ट योर एम्प्लॉयर्स, ठीक है, थ्रू योर अलुमनाई एंड डायरेक्टली एज वेल, और गेट द फॉर्म्स फिल. गूगल फॉर्म्स आ जाते हैं, इनपुट आ गया, फिर एनालिसिस पे मामला आ जाता है. अच्छा, रिगार्डिंग इंटर्नशिप सर्वे कैन बी डन फॉर इनडायरेक्ट असेसमेंट ऑफ PLO. सो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो देनी चाहिए वो इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर ऑफ द डिपार्टमेंट. इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर ऑफ द डिपार्टमेंट को देने की बात मैं क्यों करता हूँ, वो इसलिए कि बेसिकली इंटर्नशिप हुई है, स्टूडेंट गए हैं 3 और 4 साल के दरमियान में इंटर्नशिप करके वापस आए, तो इनके लिए QEC और IRD या रिलेशंस या प्लेसमेंट ऑफिस के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो स्टूडेंट को ट्रैक करें. सो इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर, क्योंकि वो फैकल्टी मेंबर होता है या होती है, तो उसके लिए स्टूडेंट को ट्रैक करना आसान होता है. ठीक है, और बीइंग अ टीचर मे बी कि वो ऑलरेडी जो बच्चे इंटर्नशिप करके आए हैं उन्हें कोई कोर्स भी पढ़ना है, तो यू कैन फोर्स द स्टूडेंट्स कि आप इंटर्नशिप सर्वे फिल करवाएं और अपनी रिपोर्ट के साथ कंसर्न डिपार्टमेंट को सबमिट करें. तो दिस कैन बी डन आफ्टर समर ऑफ 3rd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग. इट्स अ सजेशन. अच्छा, रिगार्डिंग एग्जिट सर्वे या ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट सर्वे, it can also be used for indirect assessment of program learning outcome. So industrial liaison office is the best office for this purpose, or QEC, जो आप बेहतर समझें.
ठीक है, एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ एडमिट कार्ड्स ऑफ फाइनल सेमेस्टर और ड्यूरिंग क्लियरेंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। नॉर्मली जिस वक्त क्लियरेंस के लिए आते हैं उस वक्त फिल करवाया जा सकता है, या फिर उससे बेहतर यह है कि आप फाइनल सेमेस्टर के लिए एडमिट कार्ड इशू कर रहे हैं उस वक्त करवा लें। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उस वक्त स्टूडेंट्स को फिल कर देंगे और आपके पास टाइम होगा। अच्छा, अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉलम है, ये जिसके पास भी हो, अल्टीमेटली एनालिसिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज़्यादातर जो प्रोग्राम्स हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्या कर रही है, एनालिसिस का काम क्वालिटी एनहेंसमेंट सेल के पास आ रहा है और वो फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं रेलेवेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको फर्दर प्रोसेसिंग। अच्छा, उसके बाद एक्रेडिटेशन टीम रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशन। एक्रेडिटेशन टीम या जो आपकी बॉडी है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए बेहतर है कि सबसे पहले तो आप मैनुअल पढ़ लें। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली शिफ्टिंग हो रही है एनसीईएसी की टूवर्ड्स ओडी, तो एनसीईएसी के जो कंसर्न कोऑर्डिनेटर हो गए, आई स्ट्रांगली सजेस्ट हैं और हर दैट स्टडी द मैनुअल। जो भी गाइडलाइंस होगी, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, एक्रेडिटेशन बॉडी ने मैनुअल में दे दी, आपने उसे फुलफिल करना है। अच्छा, साथ ही साथ वो क्या करते हैं कि प्रोग्राम एवेल्यूएशन के रूब्रिक्स दे देते हैं। प्रोग्राम एवेल्यूएशन के रूब्रिक्स से क्या मुराद है, दिस इज अ ब्रेकअप ऑफ द पॉइंट्स टू बी चेक्ड बाय द प्रोग्राम विजिटेशन टीम। आपके यहाँ जब भी एक्रेडिटेशन की कोई टीम आएगी तो वो किस बेसिस पे असेसमेंट करेगी, तो यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर होता है। यू स्टार्ट फ्रॉम द मैनुअल, मैनुअल आपने पढ़ना है, वहाँ से आपको पूरी थीम समझ में आ जाती है कि इनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ये चाहते क्या हैं, और इसके अलावा और ज़्यादा प्रिसाइज होना है तो फिर आ जाए रूब्रिक्स पर। तो रूब्रिक्स जो होते हैं वो उसको और ज़्यादा प्रिसाइज करके बता देते हैं कि जनाब एग्जैक्टली जो एवेल्यूशन है वो किस बेसिस पे है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे पीसी के रूब्रिक्स शेयर कर रहा हूँ। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के एवेल्यूशन प्रोग्राम एवेल्यूटर्स रूब्रिक्स में शेयर कर रहा हूँ, ये इन्होंने दे दिए हैं और उसमें बता दिया है कि जनाब सबसे पहले ही आपके जो एवेल्यूटर्स आएंगे वो प्रोग्राम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। उसमें क्या क्या चेक करेंगे कि आपके वेल डिफाइंड इंस्टीट्यूट विजन एंड मिशन है या नहीं। ये आगे जो ये चीज़ उन्होंने चेक करनी है, दिस कॉलम, और ये वो पॉइंट्स हैं, इन तीनों में से कोई एक ग्रेड आपको देंगे। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है कि इन चीज़ों में से कोई मंथली ग्रेड आपको ना मिले। ठीक है, अगर आप इंस्टीट्यूट और यानी यूनिवर्सिटी का विजन मिशन वेल डिफाइंड है और वेल पब्लिसाइज्ड है तो इन तीनों में से कुछ भी नहीं देंगे, सेटिस्फैक्ट्री लिख देंगे। सेटिस्फैक्ट्री के लिए यहाँ पर उन्होंने वाई का कीवर्ड यूज़ किया होता है, वाई मीन्स सेटिस्फैक्ट्री, कहीं यहाँ पर मेंशन है वाई फॉर, हाँ वाई फॉर कंप्लायंस, सी फॉर कंसर्न एक्सेट्रा। अच्छा, अब हम चूँकि इनडायरेक्ट असेसमेंट की बात कर रहे थे तो हम ये देख लेते हैं कि कहाँ पर इनडायरेक्ट असेसमेंट जो है उन्होंने देखनी है लाजमी तौर पर। यहाँ पर लिखा है टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट मेथड्स एप्रोप्रिएट एंड सपोर्टिव टू द अटेनमेंट ऑफ पीएलओज। असेसमेंट मेथोडोलॉजीज बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आर इन प्लेस बट नॉट अप्रोप्रिएट लाइक। इट मीन्स के जो इवेल्युएटर्स हैं वो दे विल चेक द इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट असेसमेंट फॉर अटेनमेंट ऑफ पीएलओज। ये उन्होंने चेक करना है अकॉर्डिंग टू रूब्रिक्स, ये उसमें मेंशन है। आगे देख लेते हैं कहाँ पर होगा। अच्छा, असेसमेंट ऑफ वेरियस लर्निंग आउटकम्स पीएलओ सीएलओ एम्प्लॉइंग डायरेक्ट एंड डायरेक्ट मेथड। यहाँ से भी हमें यही पता लग रहा है कि फॉर पीएलओ एंड सीएलओ दे विल चेक बोथ द मेथड डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। ठीक है, पीछे इसकी गाइडलाइंस जो है मैनुअल में दी होती हैं कि कहाँ कहाँ आपने इसे इंकॉर्पोरेट करना। पीओ प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की मैं ये बात करूँ तो वहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है इनडायरेक्ट का, लेकिन उसकी कैलकुलेशन ही इनडायरेक्ट असेसमेंट से होती है, उसके बगैर वो हो नहीं सकती। तो असेसमेंट टूल्स ही उसके इनडायरेक्ट हैं। Regarding accreditation teams requirements expectation, I suggest that you should check the manual, read the manual thoroughly. प्रोग्राम वैल्यूशन के रूब्रिक्स देख लीजिए, वहाँ से आपको पता लग जाता है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं अगर आप उसके बेसिस पे जा रहे हैं, एक्रेडिटेशन के लिए जा रहे हैं। अगर आप एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी एक्रेडिटेशन जो है उसकी बेस पे नहीं है, नॉट बैड,
आप ये चीज़ें डिफाइन करें. ओवरऑल द OB सिस्टम is highly supportive to the attainment of skill set. ठीक है, और वो उसी पे बेस्ड है. तो अगर कोई टीचर किसी ऐसे प्रोग्राम में पढ़ा रहा है जो OB बेस्ड नहीं है, तब भी he or she can incorporate OB in his or her course, और उससे ओवरऑल फ़ायदा ही होता है. So I conclude my presentation here. That indirect assessment is being discussed along with the stakeholders involved. Major problem flaws are being discussed, जो आमतौर पे problems नज़र आती हैं उनको हमने डिस्कस करने की कोशिश की है. Incorporation of indirect assessment and the requirement of accreditation body are also being highlighted. वो हमने बात की है PEC के हवाले से, क्योंकि PEC के गाइडलाइंस में अभी क्लियरली आ चुकी हैं. बाकी जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं या एक्रेडिटेशन बॉडीज हैं वो आप शिफ्ट कर रहे हैं. ओके जनाब, थैंक यू. आई एम थैंकफुल टू द यूनिवर्सिटी फास्ट NUCS Karachi campus authorities. I'm thankful to QEC department, Mr. Ruj. I'm thankful to Mr. Owais for helping me and for inviting me for this webinar. Thank you. If you have any query, the chat box is open. Plus I'm also given my WhatsApp number, so आप अभी ही मुझे अगर जो क्यूरीज हैं, आप अगर टाइपिंग में इशू हो रहा है तो जस्ट सेंड मी अ वॉइस मैसेज ताकि मैं उसको यहाँ पर आंसर कर सकूँ. बहुत शुक्रिया. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. आई एम वेटिंग फॉर द क्वेश्चंस. अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट लिसन थ्रू गूगल मीट ड्यू टू सम इश्यूज एट माय एंड. Regarding the questions, we have a question that will the internship survey based on PEOs or PLOs. देखिए नोटिस कीजिए, इंटर्नशिप सर्वे स्टूडेंट इंटर्नशिप किस वक्त करता है. स्टूडेंट इंटर्नशिप उस वक्त कर रहा है जब वो इनरोल्ड है, मींस वो एलुमनाई नहीं है. तो जब वो एलुमनाई नहीं है तो फिर वो PEOs वाली बात से तो वो खारिज हो गया. यानी कि इंटर्नशिप सर्वे इज नॉट रिलेटेड टू PEOs. क्यों? PEOs उस वक्त बात होती है कि PEOs हम कहते हैं ये वो स्टेटमेंट या वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो स्टूडेंट पास आउट हुआ, ग्रेजुएट हुआ और 5 साल उसने मार्केट में सर्व किया. अब जो उसमें खुशियात होंगी, दीज आर योर PEOs. सो इंटर्नशिप तो उस वक्त वो करता नहीं है, इंटर्नशिप ड्यूरिंग स्टडीज करता है. सो इंटर्नशिप्स आर रिलेटेड टू ओनली PLOs. सो इंटर्नशिप आपका एक असेसमेंट टूल बनेगा फॉर इनडायरेक्ट असेसमेंट ऑफ PLO. अच्छा, PLO के साथ में एक और चीज़ यहाँ पर ऐड कर दूँ कि PLO की डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आपको एक कम्बिनेशन फार्मूला, दिस शुड बी अ कम्बिनेशन फार्मूला. या स्टूडेंट लेवल पे नहीं हुआ तो फिर कोहॉर्ट लेवल पे आप उसे डिफाइन करेंगे. OB कोऑर्डिनेटर कोहॉर्ट लेवल पे उसे डिफाइन करेंगे. एज फार एज द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इज कंसर्न, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो डायरेक्ट असेसमेंट में आएगा. वाई? देखें, आप सबसे पहले तो ये देखिए कि आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या कहता है. योर एग्जिस्टिंग सिस्टम सेज कि जनाब देयर विल बी अ प्रपोजल प्रेजेंटेशन. ठीक है. आफ्टर 6 months देयर विल बी अ फर्स्ट इवैल्यूएशन प्रेजेंटेशन. आफ्टर नेक्स्ट 6 months देयर विल बी अ फाइनल प्रेजेंटेशन अलोंग विद डेमो, एंड देन द स्टूडेंट ग्रुप हैज टू सबमिट अ थीसिस और अ रिपोर्ट. ठीक है. हर चीज़ के यहाँ मार्क्स हैं. तो यहाँ जो सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी डायरेक्ट असेसमेंट से रिलेटेड है. क्यों? फर्स्ट प्रपोजल प्रेजेंटेशन के अगर कोई मार्क्स हैं तो हर स्टूडेंट 1 by 1 प्रपोजल का कुछ हिस्सा प्रेजेंट करेगा. ठीक है. तो बेसिकली जो भी है वो आप सामने आपको स्टूडेंट के सैंपल्स जो हैं या स्टूडेंट का जो इनपुट है वो सामने मिल रहा है, बिल्कुल क्लियर मिल रहा है. ठीक है. सिमिलरली फर्स्ट इवैल्यूएशन है, उसमें प्रोजेक्ट का डेमो है और जो प्रोजेक्ट का डेमो है, प्रेजेंटेशन है या वाइवा, वो सब कुछ आप हर स्टूडेंट से 1 by 1 पूछ रहे हैं. तो दिस इज़ नॉट द इनडायरेक्ट असेसमेंट. इनडायरेक्ट असेसमेंट ये है कि आप उसकी किसी स्किल सेट को किसी और तरीके से पूछ रहे हैं, जबकि यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है. FYP में यू आर आस्किंग हिम डायरेक्टली कि जनाब एक्सप्लेन मी दिस थिंग, इफ़ यू हैव यूज्ड आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर और इफ़ यू हैव डन कोडिंग इन विजुअल बेसिक, ये फंक्शन आपने किस तरह से बनाया. तो अब वो जो इनपुट दे रहा है वो डायरेक्टली स्टूडेंट का जो इनपुट है वो आपके पास स्ट्रेट आ रहा है, आपको पता लग रहा है वेदर ही और शी इज़ करेक्ट और नॉट. सो FYP जो है वो डायरेक्ट असेसमेंट में आएगा.
और FYP जो है वो अगेन उसके जो मार्क्स होंगे या उसको आप रिलेट करेंगे PLO से, वो डायरेक्टली वो PLO से रिलेट करेगा। I'm thankful to all of you for being a nice audience and very supportive. So nice. Okay, thank you from my side. Allah Hafiz. ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द इवेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इवेंट में फिर से मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।